Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about the induction motor, induction machine, single phase induction motor and three phase induction motor, and we studied about the induction generator. So today we are going to start our new unit, unit 3, which is about the synchronous machine, and today's topic of discussion is synchronous machine, synchronous generator. So working principle. The electrical machine can be defined as a device that converts electrical energy into mechanical energy or mechanical energy into electrical energy. An electrical generator can be defined as an electrical machine that converts mechanical energy into electrical energy. An electrical generator typically consists of two parts, rotor and stator. There are various types of electrical generators such as direct current generators, alternating current generators, vehicular generators, human powered electrical generators, and so on. In general, synchronous generator consists of two parts, stator and rotor. The working principle of synchronous machine is fundamentally the same as that of DC machine, but unlike the latter, in the synchronous machine there is no need to rectify the time varying EMF which is induced in the armature winding. Consequently, a synchronous machine does not require a commutator. The rotor of the alternator is run at its proper speed by the prime mover. The prime mover is a machine which supplies the mechanical energy input to the alternator. As the poles of the rotor move under the armature conductor on the stator, the field flux cuts the armature conductor. Therefore, the voltage is generated in these conductors. This voltage is of alternating nature since poles of alternate polarity successively pass by a given stator conductor. A three-phase alternator has a stator with three sets of winding arranged so that there is a mutual phase displacement of 120 degree. These windings are connected in star to provide a three-phase output. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका कि जो मेरी सिंक्रोनस जनरेटर होती है वो वर्क लाइक सेम एज एन डीसी मोटर, डीसी जनरेटर सॉरी, मतलब जो सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग होती है वो सेम होती है डीसी जनरेटर की तरह. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि मेरा जो डीसी जनरेटर था वो सिंगली एक्साइटेड था, ठीक है, और उसमें मुझे कम्यूटेटर की ज़रूरत थी. सिंक्रोनस जनरेटर मेरा डबली एक्साइटेड होता है, मेरी सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो मेरी डबली एक्साइटेड होती है, ठीक है, और इसके में मुझे कम्यूटेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ये कैसे काम करता है कि जब मैं अपने रोटर को मूव कराती हूँ बाय मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल प्राइम मूवर, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे स्टेटर को एक्साइट करती है और स्टेटर उसके बाद में जो मेरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में फॉर्म करता है जो कि मेरी इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है. सो मोटर क्या करती है कि मोटर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और मेरा जनरेटर क्या करता है कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसे कि मैंने अपने रोटर को रोटेट कराया विच इज़ अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब रोटर रोटेट करता है तो इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और जिसकी वजह से जब मेरा स्टेटर एक्साइट हुआ और उसने एसी सप्लाई प्रोड्यूस की, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन. सो इंडक्शन मशीन्स में क्या था कि मेरी सिंगली एक्साइटेड थी, इंडक्शन मशीन भी और डीसी मशीन भी मेरी सिंगली एक्साइटेड होती है, ठीक है, जबकि मेरी सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड होती है. डबली एक्साइटेड का मशीन का मतलब क्या है कि जो मेरी एसी मशीन होती हैं, इंडक्शन मशीन होती हैं, दे आर एक्साइटेड बाय द एसी सोर्स. जो मेरी डीसी मशीन्स होती हैं दे आर एक्साइटेड बाय द डीसी सोर्स. जबकि जो मेरी सिंक्रोनस मशीन्स होती है वो मेरी डबली एक्साइटेड होती हैं. डबली एक्साइटेड का मतलब क्या है कि जो मेरी स्टेटर है, स्टेटर इज़ एक्साइटेड बाय द एसी सप्लाई और जो मेरा रोटर है इट इज़ एक्साइटेड बाय द डीसी सप्लाई, ठीक है. सेकेंड डिफरेंस क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन में कि जो मेरा एसी होता है, जो मेरी एसी मशीन्स होती हैं, मेरी डीसी मशीन्स होती हैं, सो उसमें क्या था कि जो मेरा रोटर था
उसमें मैं आर्मेचर वाइंडिंग करती थी, और जो मेरा स्टेटर था उसमें मैं फील्ड वाइंडिंग करती थी, फील्ड पोल्स होते थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरी मशीन का साइज़ जो होता था वो थोड़ा बड़ा होता था। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मेरे आर्मेचर में जो मेरा रोटर होता है उसमें मेरी फील्ड वाइंडिंग होती है, और जो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो मेरे स्टेटर में होती है। मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन अपोजिट होती है एसी एंड डीसी मशीन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। दो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई कि एक तो मेरी जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो डबली एक्साइटेड होती है, स्टेटर को मैं एसी सप्लाई देती हूँ और रोटर को मैं डीसी सप्लाई देती हूँ। सेकंड चीज़ क्या है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसके जो दो पार्ट्स हैं रोटर एंड स्टेटर, एसी और डीसी मशीन में क्या होता था कि रोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती थी और स्टेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती थी, जबकि सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस। आर्मेचर वाइंडिंग ज़्यादा स्पेस लेती है जबकि फील्ड वाइंडिंग कम स्पेस लेती है। अगर मैं अपनी आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के अंदर रखती हूँ, रोटर में करती हूँ, तो मेरी मशीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो डायरेक्टली स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में रखती हूँ तो उसको कूलिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसमें इंसुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और जो एयर गैप होता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर वो डिक्रीज़ हो जाता है और स्पीड भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर सिंक्रोनस मशीन में मैंने क्या कर रही हूँ कि मैं सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन में जो स्टेटर है उसमें मैंने आर्मेचर वाइंडिंग रखी है। अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग को आउटर पार्ट में रखूँगी, सो विद द हेल्प ऑफ स्टेटर योक, जो स्टेटर का आउटर पार्ट होता है जिसको मैं योक बोलती हूँ, उसकी हेल्प से उसको इंसुलेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। वो आउटर पार्ट है तो उसको कूलिंग भी ईजिली प्रोवाइड होगी, और जो वो हीटिंग रिलीज करेगा वो मेरी मशीन के अंदर नहीं, वो मेरी मशीन के आउटर पार्ट में रिलीज करेगा, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन में जो एयर गैप होता है स्टेटर एंड रोटर में, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब साइज़ स्मॉल होगा, क्योंकि इसमें मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर में रखा है तो इसके अंदर मैं ईजिली फील्ड पोल्स को प्लेस कर सकती हूँ, तो कंस्ट्रक्शन स्मॉल हो जाएगी जिसकी वजह से कि मेरा जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी एंड डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। सो एसी एंड डीसी मशीन्स मेरी सिंगली एक्साइटेड होती हैं, सिंक्रोनस मशीन मेरी डबली एक्साइटेड होती हैं। एसी एंड डीसी मशीन्स में सिंगली एक्साइटेड होती हैं, और जो रोटर और स्टेटर होता है, रोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, स्टेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है, जबकि सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है कि स्टेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, रोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है। इसका रीज़न क्या था, साइज़ को स्मॉल करने के लिए मशीन को, ठीक है, कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, हीट को मशीन के बाहर रिलीज करने के लिए, इंसुलेशन ईजिली प्रोवाइड करवाने के लिए, एंड एयर गैप को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन आर यूजुअली ऑफ 3-phase टाइप बिकॉज ऑफ द सेवरल एडवांटेज ऑफ 3-phase जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर्स आर यूज्ड टू जनरेट बल्क पावर एट थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस. Synchronous generators with power ratings of several hundreds megawatt amperes are very commonly used in generating stations. ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि सिंक्रोनस जनरेटर्स को मैं ऑल्टरनेटर भी बोलती हूँ। सो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ ऑल्टरनेटर, सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज. Alternators are also known as synchronous generator, or synchronous generators are also known as or called as alternators. Then there are mainly two types of synchronous generator parts. First is stator, that is armature winding, and second is rotor, that is DC field system. So stator, the armature is an iron ring formed of lamination of special magnetic iron or steel alloy having slots on its inner periphery to accommodate armature winding and is known as the stator.
The whole structure is held in frame which may be of cast iron or welded steel plates. तो सो स्टेटर में क्या होता है कि इनर पेरीफेरी के अंदर मैं पैरेलल स्लॉट्स लगाती हूँ जो कि मेरे आयरन के या फिर वेल्डेड स्टील प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर की मैं अपनी आर्मेचर वाइंडिंग करती हूँ. द फील्ड रोटेट्स इन बिटवीन द स्टेटर सो दैट फ्लक्स ऑफ द रोटेटिंग फील्ड cuts the core of the stator continuously and therefore causes eddy current loss in the stator core. The stator core is laminated to minimize the eddy current loss. Then we have rotor. Rotor is of mainly two types, silent pole type and smooth cylindrical type. So it is like a flywheel which has large number of alternate north and south bolted on it. The magnetic wheel is made up of cast iron or steel of good magnetic quality. These magnetic fields are energized or excited by DC source. The silent pole rotors are used only by low and medium 120 to 500 rpm speed synchronous generators such as those driven by water turbines. Because of their low speed, they require a large number of poles. Such rotors have large diameter and short axial length. The silent pole structure is simple and cheaper to manufacture than a cylindrical rotor. इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इट हैज़ रोटर पोल्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द रोटर कोर. This type of construction is used for low-speed hydraulic generators and the large number of poles necessary are accommodated in projecting form a rotor of large diameter but small length. This construction is almost universally adopted for synchronous motors. ठीक है. और एक चीज़ और, जो मेरी साइलेंट पोल मशीन होती हैं इसमें मेरे जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. लाइक मोर देन 4 पोल्स मशीन में ही मैं साइलेंट पोल रोटर को यूज़ करती हूँ. तो अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ पोल्स ज़्यादा होंगे तो मेरी स्पीड क्या होगी? स्पीड मेरी डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. सो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन वाइडली यूज़ की जाती है बट इसकी स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल पोल मशीन के. और इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो हमेशा मोर देन 4 होते हैं. रोटर्स हैव स्मॉल डायमीटर एंड वेरी लॉन्ग एक्सियल लेंथ. इसमें क्या होता है कि मेरे नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं 2 to 4 ओनली, जिसकी वजह से कि मेरी स्पीड क्या होती है वो हाई होती है. ठीक है. सो द सिलेंड्रिकल रोटर मशीन हैज़ इट्स रोटर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म with DC field windings embedded in the rotor slot. This type of construction provides greater mechanical strength and permits more accurate dynamic balancing. It is particularly adopted for use in high-speed turbo generators wherein a relatively long but small diameter rotor is used to limit the centrifugal forces developed. 2 or at most 4 pole machine use this type of construction. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल में क्या होता है कि साइलेंट पोल में नंबर ऑफ पोल्स 4 to 60 होते हैं. नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है. स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर और नॉन साइलेंट पोल मशीन में क्या होते हैं कि जो मेरे नंबर ऑफ पोल्स होते हैं दे आर ओनली 2 to 4. पोल्स कम होने की वजह से इसकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है. Excitation system of synchronous generator. The rotor poles of the synchronous generator are electromagnets. जो rotor के poles होते हैं they are electromagnetic. They require excitation for their operation. The field winding needs a DC supply to produce the required flux. There are several excitation systems which are used to provide DC excitation current for the जनरेटर. ठीक है. सो हम लोगों ने पढ़ा था कि डीसी जनरेटर डबली एक्साइटेड होते हैं. स्टेटर में हम एसी सप्लाई देते हैं एंड रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं. सो रोटर को हम एक्साइट करने के लिए डीसी सप्लाई देते हैं. डीसी सप्लाई के अलावा भी हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं उसको एक्साइट करने के लिए. जैसे कि हमारा फर्स्ट है एसी जनरेटर टर्मिनल्स. इन वन सिस्टम पावर इज टेकन फ्रॉम द एसी जनरेटर टर्मिनल्स, इज रेक्टिफाइड एंड देन सप्लाइड टू द रोटर फील्ड सिस्टम through slip ring and brushes. सेकेंड सिस्टम क्या है कि एक्साइटेशन सप्लाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल डीसी शंट जनरेटर्स कॉल्ड एन एक्साइटर. इट इज माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट एज दैट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर.
ठीक है। सो हम डीसी जनरेटर के अलावा डीसी शंट जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं अपने रोटर को एक्साइट करने के लिए। अनदर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, अ स्मॉल 3-phase जनरेटर माउंटेड on the shaft of the main generator itself is used as an exciter. The output of the exciter is rectified and fed directly to the rotating magnetic field poles of the synchronous generator. The brushless excitation system has no commutator, slip rings or brushes, which make the system simple and reliable. ठीक है। सो इसका एक्साइटेशन में हम लोग डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एसी जनरेटर टर्मिनल्स हो गए, डीसी शंट जनरेटर हो गया, ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम हो गया, या फिर नो कम्यूटेटर मेथड हो गया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट सिंक्रोनस मशीन, बिकॉज सिंक्रोनस मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में। synchronous generators are the only generators which are used at the front end of power system. पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम जहाँ से मेरी एनर्जी जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वहाँ पे जो मैं मेन सोर्स यूज़ करती हूँ अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उसका नाम होता है सिंक्रोनस जनरेटर। देयर ओनली सिंक्रोनस जनरेटर्स आर यूज्ड। एंड वाई वी यूज सिंक्रोनस जनरेटर्स? बिकॉज उनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। पावर सिस्टम में फ्रंट एंड में वी यूज सिंक्रोनस जनरेटर्स, एंड बिकॉज वाई वी यूज सिंक्रोनस जनरेटर्स? बिकॉज देयर स्पीड इज कांस्टेंट। Okay, so thank you students, and still if you have any doubts regarding this topic, then please do mention me in the comment section.